Gracious Lord, we thank you for the privilege and honor you have given us to come to your feet once again. You are a good God, and whenever we come to your feet, you will never reject, but always keep speaking to us and meet our needs. This evening, Lord, we humbly pray that minister to us, Lord, open our eyes, help us to practice your presence, help us to taste your love, help us to understand how we should live on this part of the grave. Lord, if you count all our failures and unworthiness, we can never come to your feet. It is all because of your gracious kindness and compassion. You have been forgiving us and you have been granting grace after grace. Lord, this evening, once again, kindly be gracious unto us and speak to us, because we offer this prayer with thanksgiving in Jesus' most precious name. Amen. Okay. We've been studying the book of Daniel. हम सभी लोग दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। We've been seeing again and again that the key verse in the book of Daniel is Daniel chapter 11 and verse 32. The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. और जैसे कि हमने एक मुख्य बिंदु जो दानियल की किताब 11 अध्याय का 32 वचन से लिया था कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। We knew that the book of Daniel can be divided into two parts. Verses chapter 1 to 6, we find Daniel and his friends, and chapter 7 to 12, we find Daniel's visions. और दानियल का अध्ययन करने के लिए जैसा कि हमने उसे दो भागों में बांटा था। पहले भाग में 1 से 6 अध्याय तक दानियल और उसके मित्रों के बारे में वर्णन था, और दूसरे भाग में 7 अध्याय से 12 अध्याय तक दानियल और उनका दर्शन था उसमें। So in the previous class, we have studied the third chapter to some extent. और हमने पिछले अध्ययन में लगभग तीसरे अध्याय का काफी कुछ अध्ययन कर चुके थे। So these young children, Shadrach, Meshach, Abednego, they were saying to the king, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up." Chapter 3, verses 16 and 18. और जैसा कि हमने अ, अ, दानियल की किताब और उसका तीसरा अध्याय और उसके 18वें वचन से देखा था कि परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। And verse 19, the Nebuchadnezzar was full of fury, he was full of wrath, and the expression on his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. And so he commanded his people to increase the intensity of the fire 7 times more than it was usually heated. और जैसा कि यहाँ पे 19 वचन में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झंझला झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक मिश्रक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धक्का दो। And he commanded certain mighty men of valor who were in his army to bind Shadrach, Meshach, Abednego and cast them into the burning fiery furnace. और जैसे कि 20 वचन में लिखा है, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी
कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। The intensity of the furnace was so great. Verse 23 says, these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound in the midst of the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar, or else we should definitely see uh, verse 20, 22. The flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. That's important. Verse 22, second और part. या और जैसे कि 22 वचन में लिखा है, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। Yeah, those the men of the army, men of king, they were burnt into ashes in the process of throwing them into the fiery furnace. और यहाँ पे ये लिखा है कि जिन पुरुषों ने उनको आग में डालने की कोशिश की थी वे सभी लोग आग की आंच में जल मरे। And verse 24, the king Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast three men into the midst of fire? Then answered and they said to him, true, O king. और 24 वचन में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। Verse 25, look, he answered, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. और 25 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। What do we understand here? और हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? Those who wanted to throw these three young men into the fire, they were burnt. But whereas instead of three, four people are found right in the midst of the furnace, unbound, and they were free, and they were just walking. और हम यह देख रहे हैं कि वहां पे जितने लोग उनको आग की भट्टी में फेंके थे वे लोग जल मरे, और ये सभी लोग अपने बंधनों से खुले हुए वहां पर आग में टहल रहे थे एक चौथे पुरुष के साथ, ये हम देखते हैं। King is testifying that the fourth one is like the Son of God. और यहाँ पे राजा जो इस बात की गवाही दे रहा है, साक्षी दे रहा है कि चौथा पुरुष जो दिख रहा है उसका जो चेहरा है वो ईश्वर के पुत्र के सदृश है। It is natural to fire to burn anything that touches. But here there is something supernatural is happening. Fire is not doing any harm to these young children. Much more they were walking. Something, supernatural. और यहाँ पे बहुत ही विशेष और अलौकिक घटना हो गई कि इस आग में अगर कोई छू भी जाए तो वो जल जाता, लेकिन हमने देखा कि इनको आग में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई। So God of the Bible can do such a miracle and wonder, even a natural, against the nature of fire. How he kept his servants, those who took a stand for him, and fire could not touch them. और हम यह देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से जो आग है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है वो इन परमेश्वर के लोगों को छू नहीं पाई, और परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखते हैं इस आग से उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई। You need to call back your memory how Moses, when he saw the burning bush, he was so surprised that uh, uh, the bush is not being burned, but there was fire continuously still flaming.
और अगर आपको याद होगा तो हमने जब मूसा के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब उसने जलती हुई झाड़ी में से आग को देखा, तो वहां पे उसने देखा कि आग जल तो रही है लेकिन झाड़ियां भस्म नहीं हो रही है। It was a strange look for Moses. It was something supernatural. Then he just stared at that scene again and again, and from there the Lord spoke to Moses. और वहां पे हम देखते हैं मूसा के लिए बहुत ही अलौकिक घटना थी, और वो इस घटना को बार बार जाके देख रहा था। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। Now Moses was outside the fire. Here these three young children are inside the fire. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मूसा तो उस समय आग के बाहर में इन अलौकिक आग को देख रहा था, परंतु यहाँ तो सदरक मिशक और अबेदनगो जो है वो आग के अंदर से इस आग को देख रहे हैं। We can learn several lessons, as we are meditating. I'm getting couple of thoughts. और जब हम इसे मनन करते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे जीवन में आते हैं। When you walk with God, even जब fire आप cannot touch you. और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आग भी आपको छू नहीं सकती है। When you walk with God, even something which is natural, something which normally should do, and you'll be able to do something supernaturally. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं तो एक साधारण काम की जगह पे आप एक असाधारण काम करने के योग्य हो जाते हैं। The presence of God makes all the difference. और इसमें जो अंतर है वो मुख्य है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। When we see the challenges like fire, comes up, when we faithfully stand with God and for God, and when we walk with God, and the rich presence of God can be experienced. और हम देखते हैं प्रियो कि जैसे आग जैसी चुनौती यहाँ पे हमें दिख रही है, परंतु अगर हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़े हुए हैं, तो हम वहां पर अपनी जीवन में अलौकिक महिमा को देखते हैं। And then uh, King calls out, verse 26. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke to, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. और 26 वचन में लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मिशक और अबेदनगो, और हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मिशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। Verse 27. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not signed, nor their garments affected, and the smell of fire was not on them. What a testimony! और 27 वचन में ऐसा लिखा है कि जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, और उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक भी बाल न झुलसा, और न उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना ही उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। Because the Lord was with them, and he was like Son of God. Even that was the witness by a pagan king, and even fire could not touch them. और हम यहाँ देख रहे हैं प्रभु उनके साथ था, और यहाँ पे ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके साथ था, ऐसा एक गवाही एक राजा बता रहा है, जो कि अन्य अन्य देवताओं की आराधना करने वाला राजा इस बात की गवाही दे रहा है, और इन लोगों को आग के द्वारा कोई भी हानि ना हुई। So, one important lesson what we learn out of this chapter is we should always make sure whether the Lord is with us or not. When we take a stand for God, when we face challenges, we should be always make sure that the Lord is with us or not. That's very important. और प्रियो, हम इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी हमारे सामने कोई चुनौती हो और हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। That means when you have or I have a normal practice of walking with God, when everything is fine and everything is hale and healthy,
और हम अगर देखते हैं कि सामान्यतः अगर हमको परमेश्वर के साथ चलने का अच्छा अनुभव है और हम बड़े अच्छे से और सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, then the critical moments or the challenging moments or the situation which we find very difficult or impossible situations like thing, but still we keep walking with God, and God of the Bible does wonders, because same God of Shadrach, Meshach, Abednego is your God and my God. और प्रियो हम देखते हैं कि जब भी हम ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चलेंगे, कठिन और असंभव परिस्थितियों में चलेंगे, और अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर वहां पर आश्चर्य कर्म करेंगे, जैसा कि सदरक मिशक और अबेदगो के परमेश्वर के साथ हुआ। And verse 28, Nebuchadnezzar spoke, saying, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants who trusted in him, and they have frustrated the king's words and yielded their bodies that they should not serve nor worship any god except their own God. और 28 वचन में ऐसा लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा कि धन्य है सदरक और मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। This is the statement made by the pagan king. Please remember that. और ये जो टिप्पणी है, ये जो कथन है प्रियो, ये हम भूलना नहीं है कि एक अन्य जाति राजा ने कहा है। Verse 29, therefore I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. और 29 वचन में ऐसा कहा कि इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। King Nebuchadnezzar was ruling 127 provinces. He sent a decree to all these 127. It was a big empire of King Nebuchadnezzar. He sent the decree to all these provinces. और हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर लगभग 127 प्रांतों पे राज्य करते थे और इतनी बड़ी साम्राज्य के वो शासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस बड़ी साम्राज्य में सभी लोगों, सभी प्रांतों तक इस सूचना को और आदेश को पहुंचा दिया। The question which I posed here on the screen is, did they preach or did they live? और जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में एक सवाल लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रचार किया या उन्होंने जीवन को जिया। Please remember, we think, doing ministry is something different and living life is something different. No, we cannot compartmentalize our life. और प्रियो, अगर हमारा जीवन कुछ और हो और हमारा प्रचार कुछ और हो, तो कभी भी हम एक सही जीवन नहीं रख रहे हैं लोगों के सामने। When we live our life according to the convictions of the scriptures by the power of the Holy Spirit, we are actually ministering God. और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सही अंगीकार करके जब हम अपने जीवन को जिएंगे, तो यही वास्तव में परमेश्वर की सही सेवकाई है। Unfortunately, many people, made a big deal as if, a person who is working in some private or government sector and then resign and came for full time. They only are called the servants of God. See what verse 26, King Nebuchadnezzar is saying. Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. हम कई बार देखते हैं प्रियो कि लोग अपना सरकारी नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा करने आते हैं, तो हम सोचते हैं कि वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेवक हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए नबूकदनेस्सर ने जो दानियल 3:26 में क्या कहा, सदरक मेशक और अबेदगो जो परमेश्वर के महान दास हैं। I was also thinking say in the same way, because I also was working in government. I also put down my papers and came for full-time service. I really understand that Bible does not talk about half-time, part-time, full-time. Bible talks about all believers are all-time servants of God.
और प्रियो, मैं भी जैसे एक सरकारी नौकरी में था और मैं प्रभु की सेवा करने के लिए उसमें से उस नौकरी छोड़कर आया। परंतु बाइबिल हमें परमेश्वर की सेवा को पूर्णकालीन, अल्पकालीन या अर्धकालीन नहीं बताती है। परंतु परमेश्वर के जितने भी सेवक हैं वो सब पूर्णकालिक सेवक हैं। The only question is whatever the responsibility God has given us, that responsibility we should faithfully do. Whatever it may be, maybe God calls us as a teacher, as a doctor, or as a professor, or as a scientist, or as an ordinary, the labor. Doesn't matter. Whatever may be the call. There is nothing like और half-time, part-time, full-time, but it all depends upon God's plan and purpose. Wherever God keeps us, whatever God gives us, that we should be faithfully doing. और प्रियो, हम इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर की दो जो भी दी हुई जिम्मेदारी है, सेवा है, उसको विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना है। भले हम टीचर हों या डॉक्टर हों या प्रोफेसर हों या साइंटिस्ट हो या हम एक साधारण से मजदूर हों, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा को विश्वास योग्यता के साथ करना है। और हम ये कभी नहीं सोचना कि हमें अर्धकालीन या पूर्णकालीन समय के लिए बुलाया गया है। परंतु हम सभी लोग पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाए गए हैं, और हम परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने जो कहा है उन कार्यों को हम पूरा करना है। Many people think that, working in government or working in a private sector is serving the devil. Absolutely wrong. Please remember, God is the creator, God is the owner, and everything belongs to God. God recruits his people to be at some place and to serve him. We work as unto God. That's important. और फिर इस बात को हम हमेशा याद रखना है कि चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हों या प्राइवेट सेक्टर में, हम इस बात को नहीं भूलना कि परमेश्वर ही है जो सृष्टि का रचना करने वाला वो मालिक है। और उसने हमें किसी विशेष जगह पे रखा हुआ है ताकि हम उसकी सेवकाई जो है उस स्थान पे कर सकें। Please remember, I'm telling you because I was also working in government. Now I'm into full time because I've seen these two dimensions. I'm telling you very personally, please listen to me very carefully. और मैं आपको बता रहा हूँ प्रियो, आप बहुत अच्छी रीति से इसको याद रखें, क्योंकि मैं भी एक शासकीय सेवा से प्रभु की पूर्णकालीन सेवा में आया हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से आप सुने। It is in Roman Catholic system where the priesthood and laity, there are two different departments and compartments. And it is in the Old Testament philosophy where Levites and priests are exclusively different. They should exclusively keep doing it. But the other, the women, the men of Israel, even the Gentiles, there were different categories in the Old Testament. और हम देखते हैं कि आरसी जो रोमन कैथोलिक कलीसिया होते हैं उनके डिनोमिनेशन में याजक और जो साधारण लोग होते हैं, लैटिन लोग, वे अलग होते हैं। परंतु पुराने नियम में हम देखते हैं कि याजक, लेवी और सभी लोग अलग अलग क्रम में अलग अलग सेवा करते हैं। पुरुष और स्त्रियों का सबका अलग अलग महत्व हम पुराने नियम में देखते हैं। When Jesus Christ died on the cross of Calvary, the Bible says the veil that separates the Holy of Holies to Holy was torn from top to bottom, not bottom to top. और प्रियो, ये बात हम जानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उस समय जो यरूशलेम में जो पर्दा था वो फट गया, जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करता था वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। That means there is no mediator now. There is no priest in between ordinary a person and then the God himself. No. Now Bible says all believers are priests, all believers are the kings. In the first Peter chapter 2, it's very clearly written, we are his kingdom, we are his priests. And the only difference is believer and unbeliever. That's it. और प्रियो, हम इस बात को याद रखना कि अब जो है, अब कोई भी मध्यस्थ नहीं रह गया है। जैसे पहले याजक लोग मध्यस्थ हुआ करते थे कि परमेश्वर और साधारण लोगों के बीच में, अभी इस प्रकार का कोई भी याजक की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। परंतु सभी विश्वासी लोग अभी याजक हैं और राजपदधारी हैं, जैसे कि पहला पत्रस 2 अध्याय में लिखा हुआ है। बस हम एक चीज कह सकते हैं कि कोई विश्वासी है या फिर अविश्वासी है। Let me also tell you one more important thing. Out of experience, I'm telling, out of convictions, I'm telling you. और मैं आपको विशेष एक और बार कहता हूँ, जो अपने कायल होने के अनुसार मैंने जो सीखा है वो बात आपको कह रहा हूँ। Whether you are full time
serving God, or you are working in the marketplace, working in the society, in the world, or maybe in the state government or private government, private or whatever it may be, please remember it is God who feeds us. It is God who enables us to eat food and live. प्रियो, चाहे हम फुल टाइम मिनिस्ट्री हो, या हम बाजार में काम करते हो, या हम समुदाय में काम करते हो, या संसार में काम करते हो, या किसी राज्य में हम काम करते हो, या किसी जगह हम निजी व्यवसाय करते हो, परंतु ये बात हम नहीं भूलना कि वो परमेश्वर ही है जो हमें भोजन देता है, और वो क्षमता देता है कि हम भोजन कमा सकें और जी सकें। And we should not think that, even the salary, what an employee will get, or a businessman getting the profit, he is earning all by himself. No, it is God giving. और ये प्रियो, हम ये बात कभी नहीं सोचना कि चाहे हमें नौकरी के द्वारा तनख्वाह मिल रही है, या हम कोई प्राइवेट काम करके जो लाभ कमाते हैं वो हमारी सामर्थ्य से मिली है हमें, ये हम कभी नहीं सोचना। So here, God has only one treasury, and God is providing our needs from the same one treasury. That kind of understanding is very important. और हम ये बात याद रखना कि परमेश्वर के पास एक ही भंडार गृह है, और वो उसी भंडार से सभी लोगों की जरूरतों को वो पूरा करता है। The full timer may not have a monthly income, but he may be living by faith. But those who are getting regular income, monthly income or weekly income, some kind of profit, and if they have this understanding that God is the common treasurer and God provides for everyone, then we will know how to handle the finances what God has given. और प्रियो, चाहे कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री करता हो, पूर्णकालिक, तो वो जरूर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ जिएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई शासकीय नौकरी करता है, जो नियमित रूप से नौकरी करते हैं और वो तनख्वाह पाते हैं, वो इस बात को कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर ही वो भंडारी है जिन्होंने अपने भंडार से उन्हें ये तनख्वाह कमाने की शक्ति दी है। और वो अगर इस बात को जान जाएंगे तो जरूर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ही है जो मेरे पूंजी को और मेरे तमाम वित्तीय चीजों को वो निर्धारित करता है और नियंत्रण करता है। That is the common understanding in the early church. We find it in Acts chapter 4. For that reason, what they did, and who has resources, they all brought and kept it at the apostles' feet, and that was distributed to everyone equally and according to the needs. और प्रियो, हम देखते हैं कि पुराने नियम में आप देखते हैं कि मतलब पुरानी सदी की कलीसिया में हम देखते हैं, प्रथम सदी की कलीसिया में, प्रेरितों के काम अध्याय 4 में भी, कि जितने भी लोग थे वो एक मन के रहते थे, और प्रेरित जितने भी लोग अपनी कमाई करते थे या खेत बेचते थे, वो सभी लोगों का धन प्रेरितों के पांव पे रख दिया करते थे, ताकि उसके द्वारा वे लोग जिसको जरूरत होती थी वो सभी लोगों को समान रूप से बांट दिया करते थे। So that should be the understanding of the church. The understanding of the church is the members of the church should bring all their resources and see that all members, church members, all the members of the family of God should their needs be met from the common funds. और जो कलीसिया के सभी सदस्य हैं, वो इस बात को जानना है प्रियो कि कलीसिया का परिवार एक परिवार है, और कलीसिया के परिवार में जो भी धन है वो सब एक एक भंडार में रखा गया है, जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, सभी लोगों के लिए वो खर्च किया जा सकता है, ऐसा लोग समझना है। So every believer should not forget that when God gives more than what your family needs, that means you are supposed to share your funds with the people of God in the house of God. तो यूँ बस इस बात को समझिए कि आपके परिवार के लिए जो भी जरूरतें हैं, अगर परिवार परमेश्वर उससे ज्यादा कुछ दे रहे हैं, तो आप इस बात को जरूर जानिए कि वो आपको वो चीज आपको परमेश्वर ने अपने भवन के लिए और अपने परमेश्वर ने अपने घर के लिए, सेवा के लिए दिया है। So that the full-time servant of God who is serving among the people of God as a shepherd, he should not worry about the day-to-day needs. It must be fed by the members of the house of God, by the family members of the house of God. And whoever gets more than what their family needs should get into the house of God. And everybody in the house of God should be fed, and there should not be any lacking. And they should see that it's God who supplies all their needs.
और प्रियो, जैसे कि कोई पूर्णकालिक सेवक हैं जिन्हें पास्टर कहते हैं, वो उनको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनकी जरूरतें कैसी पूरी होगी, उनकी दैनिक जरूरत कैसे पूर्ति होगी, क्योंकि वे सभी जरूरतें परमेश्वर के घर से उन्हें पूरी की जाएगी, परमेश्वर के भवन से उसे मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर के भवन में जो भी भंडार है वो सबके लिए, वो सबके भोजन के लिए है, ताकि वहां पे कभी भी किसी को कमी ना हो और वहां पे सबको पर्याप्त रीति से मिले। Let me proceed further by saying just one statement. और मैं एक बात कह के आगे जाना चाहूंगा। So every believer should not forget that they are accountable to God when God gives them more than what their family needs. It must be shared with the people of God, those who are lacking what you have surplus. प्रियो, इस बात को मैं आपको अच्छे से बता दूं, सभी विश्वासी इस बात को नहीं भूलना है कि हम सभी लोग एक दिन लेखा देंगे कि परमेश्वर ने अगर हमें हमारी जरूरतों से ज्यादा दिया हुआ है कुछ, तो हम उसको जरूर बांटना है परमेश्वर के लोगों से जिन्हें उसकी कमी हो रही है, और इन सारी बातों का लेखा हमसे परमेश्वर जरूर लेंगे। So why should God give you 1 lakh rupee per month salary, or 2 lakh rupee per month salary, or 3 lakh rupee per month salary? And there is someone who is maybe a full timer who is starving, and you have, you increase your funds, you keep storing in your banks, and you increase your properties, and you store for children and grandchildren. But the servant of God from whom you are fed, and he's starving, and that's very bad. It's not the common economy of God teaching. प्रियो, ये जैसे कि कोई नौकरी करें, चाहे उनकी 1 लाख तनख्वाह हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, प्रत्येक महीने अगर वो कमा रहे हैं, तो कभी भी जो वो कमाते हैं और वो अपने लिए उसे खर्च करें, परंतु जो सेवक हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो अगर भूखे रहेंगे तो ये कभी भी अच्छा नहीं है, और परमेश्वर को ये सब बातें कभी पसंद नहीं है कि हम अपने बैंक के बैलेंस बढ़ाते रहें, अपने बच्चों के बारे में और नाती पोतों के बारे में केवल सोचते रहें, और हमारे सेवक भूखे रहें और जरूरतमंद पड़े रहें। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहते। परमेश्वर अगर ऐसा होते हुए देखते हैं तो ये उनके तरफ से जो पैसों की सही व्यवस्था नहीं है। May the Lord help us to understand the way what the word of God says. और परमेश्वर हमें समझने में मदद करे कि परमेश्वर का वचन में कैसी शिक्षा देता है। So with this we have completed chapter 3. और इस तरीके से हम दानियेल की किताब अध्याय 3 को पूरा कर लेते हैं। These young men, they took a stand saying that we worship God and none else. और इन सभी प्रभु के जो जवान सेवक थे, इन्होंने कहा कि हम केवल अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करेंगे। They proved to all 127 provinces of Babylon that God whom they serve is a true God. और प्रियो, इन जवानों ने इस बात को साबित कर दिया कि 127 प्रांत जिस पर नबूकदनेस्सर राज्य करते थे, उन सभी जगहों इन्होंने गवाही दे दिया कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। Chapter 4, we find that the king Nebuchadnezzar, he had a dream. और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। And there we find interesting statements. Chapter 4, verses 2 and 3. There we find Most High God, chapter 2, and again, and chapter 4, verse 2, and then chapter 4, verse 3, we find how mighty his wonders, his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from the generation to generation. और हम दानियेल की किताब 4 अध्याय उसके 2 और 3 में देख सकते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर कैसा परम प्रधान है, और वो हर पीढ़ियों में किस प्रकार चमत्कार और महिमा करता है, उसको हम इन वचनों से देखते हैं। And then verse 17, later part, that the Most High rules in the kingdom of men, gives to it whomever he will, and set over it the lowest of men. और दानियेल 4 के 17 में लिखा है, और हमें इस बात को जान लेना है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे वो दे देता है, वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। We will also find the same tone in verses 25 and 26. और इसी वचनों को हम 25 और 26 वचन में भी देखते हैं। To cut the long story short, when king dreamed,
and he sought its interpretation. The magicians and all the people, wise people of his kingdom, could not interpret. और हम देखते हैं कि दानियल ने, सॉरी, जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न का अर्थ उस प्रांत के पूरे उनके जादूगर लोग और जितने भी ज्ञानी और पंडित लोग थे, वे उसे उसका अर्थ नहीं बता पाए। Again, Daniel was called for, verse 8. At last, Daniel came before me. His name is Belshazzar, according to the name of my God. In him is the spirit of the holy God, and I told the dream before him. और 8 वचन में से लिखा है अंत में, दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। What a testimony about Daniel. The spirit of the holy God is in him. Wow. और दानियल के जीवन में कितनी अच्छी गवाही दी जा रही प्रियो, कि दानियल के जीवन में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी। And Daniel interpreted king's dream. और हम यह देखते हैं कि दानियल जो ने उस स्वप्न को जो राजा नबूकदनेस्सर ने वृक्ष के बारे में देखा था, उसका अर्थ उसे बताया। And it came true just within 12 months, almost 1 year, verse 29. At the end of the 12 months, he was walking about the royal place of Babylon. The king spoke, saying, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power, for the honor of my majesty? और जो दर्शन दानियल ने प्रकट किया, उनका अर्थ बताया राजा नबूकदनेस्सर को, वो 1 वर्ष के बाद घट गया। और यहाँ लिखा है 29 और 30 वचन में, 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। Just according to the interpretation of the dream, it came true, verse 31. While the word was still in the king's mouth, a voice fell from the heaven. King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you. और जैसा कि स्वप्न की व्याख्या के बारे में दानियल ने उन्हें बताया था, वैसा ही पूरा हो गया। और यहाँ पे लिखा है दानियल 4 के 31 में, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। Why kingdom was removed from him? और हम देखते हैं कि यहाँ पे नबूकदनेस्सर के हाथ से राज्य क्यों निकल गया। Verse 30, he was saying, what was he saying? Is not this great Babylon that I have built? और उसका कारण है 30 वचन में, उसने जो ये कहा था कि ये क्या बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने बनाया है, My mighty power, मैंने अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है, the honor of my majesty. और मैंने अपने राजनिवास होने के लिए बनाया है। And then there was a voice from heaven saying that your kingdom has been removed. और तब जब उसने ऐसा कहा कि मैंने अपने प्रताप के लिए बनाया है, तो वह ये जो आकाशवाणी है, आकाश से निकल गया। Please remember, my dear brothers and sisters, when God lifts us up high above other people, then we should never inculcate the prideful thoughts. और प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना कि जब हमें परमेश्वर बाकी लोगों से ऊंचा उठाते हैं, तब कभी भी अपने अंदर में किसी भी घमंड या गर्व के विचारों को ना आने दें। Never ever think that it is my wisdom, it is my capacity, it is my influence, it is I planned, I did, I. That pulls us down to the grave. और प्रियो, हम कभी नहीं बोलना कि ये मेरी बुद्धि से था, मेरी क्षमता से था, मेरी योजना से था, मैंने किया। मैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये मैं जो है, ये हमें कब्र की ओर और नाश की ओर ले जाता है। Please remember the very Lucifer, the great, when you study Isaiah chapter 14 and Ezekiel chapter 28, we find how glorious was the Lucifer, the archangel, but the very entertaining, prideful thought, and the very angel became devil. और प्रियो, हम देखते हैं लूसीफर के बारे में, जिसके बारे में यशायाह 40 अध्याय और यहेजकेल 48 अध्याय में लिखा है, वो कितना सुंदर स्वर्गदूत था,
परंतु उसने अपने मन में अभिमान किया अपनी सुंदरता और आराधना के कारण, और उस अभिमान के कारण वो गिरा दिया गया और बाद में वही लूसीफर, शैतान, इब्लिस बन गया। God already warned the king in his dream, but still he did not learn the lesson. He did not obey God, but he started, entertaining the prideful thoughts. He was thinking that he's an ultimate. और प्रियो, राजा को जबकि ये दर्शन मिल चुका था कि इस प्रकार उसके उसके जीवन में हो सकता है, फिर भी वो राजा उस स्वप्न के चेतावनी को भूल गया, और उसके जीवन में ये सारी चीजें अभिमान के रूप में आ गई और घट गई। He must have thought that, because of my might and my army, my power, my strength, I could overcome Judah, I could overcome the people of Israel. I have smashed them, I have burnt Jerusalem, even the temple of the living God served by the Jews. और नबूकदनेस्सर के जीवन में ये विचार आने लगा कि मैंने अपनी सामर्थ्य से सब किया, मेरी सेना के बल से मैंने ये किया, यहूदा को नाश कर दिया, यरूशलेम को नाश कर दिया, मैंने परमेश्वर के भवन को नाश कर दिया, सभी को नाश कर दिया मेरी सामर्थ्य से। ऐसा उसने अपने जीवन में विचार किया। Nebuchadnezzar should not forget that it is God who handed over his people to Nebuchadnezzar because they disobeyed God. For that reason, as a part of disciplining them, God handed over his people to the hand of the Nebuchadnezzar. और ये बात नबूकदनेस्सर को नहीं भूलना चाहिए कि वो परमेश्वर ही है जिन्होंने इजराइलों को और यहूदा के लोगों को नबूकदनेस्सर के अधीन गुलाम कर दिया था, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुशासन सिखाने का एक विषय था और तरीका था कि वो उनकी गुलामी में भेजकर उन्हें अनुशासित करे। And verse 32, his own people drove him out from the kingdom, and he lived among the beasts. He ate grass, and he lived like an animal. और यहाँ 32 वचन में लिखा है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के संग समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ना ले। Until what time? Until you know that the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he chooses. Verse 32, later part. और 32 वचन के अंतिम भाग में बताया गया कि ये सब बातें तुझ पे कब तक घटती रहेगी, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। And verse 33, he literally, don't know what kind of disease it was. He literally behaved like a beast and he was driven away. There was no kingdom, and and his situation was horrible, and that was the reason, that was the result of the entertaining pride in his mind and heart. प्रियो, हम देखते हैं 33 वचन में जैसे लिखा है, नबूकदनेस्सर के जीवन में ये सारी बातें घट गई, और उसके जीवन में हम देखते हैं कि उस राज्य उसके हाथ से छीन लिया गया, उसका राजपाट खत्म हो गया, और उसने देखा कि उसके जीवन में ये कौन सी बीमारी थी, उसका नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन ये लिखा है कि उसका जीवन पशुओं के समान हो गया, और ये बात हम देखते हैं कि उसके राज्य को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में घमंड को लेकर आया था। And verse 34 says, at the end of the time, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me. And I blessed Most High and praised and honored him who lives forever. For his kingdom is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Verse 35, and all inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, what have you done? और 34 और 35 वचन में ऐसा लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। And verse 36, at the same time, my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me, my counselors and nobles restored to me. I was restored to my kingdom,
and excellent majesty was added to me. Verse 37. Now I, Nebuchadnezzar, praised and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth and his ways in justice, and those who walk in pride he is able to put down. और 36 और 37 में ऐसा लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। And verse 37, a pagan king, he is worshiping God, he is praising God, he is glorifying God. And that is the responsibility, that is the ultimate purpose of all people of all over the earth. और प्रियो, हम देख रहे हैं कि अन्य देवताओं की आराधना करने वाला राजा नबूकदनेस्सर यहाँ पे परमेश्वर को महिमा दे रहा है और परमेश्वर को स्तुति दे रहा है। और इससे हम देखकर ये समझते हैं प्रियो कि परमेश्वर भी पूरे संसार के लोगों से यही चाहता है कि परमेश्वर वे लोग परमेश्वर की महिमा करें। We find the same thought in Philippians chapter 2. Apostle Paul writes, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is the Lord. और जैसे कि फिलिपियों 2 में पौलुस कहते हैं कि ये हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। So with this, we have concluded chapter 4, pride before destruction. And we see the chapter 4 that God is sovereign, God is ruling, and God is overruling. और हम देखते हैं प्रियो, चौथे अध्याय को हमने समाप्त कर लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि नष्ट होने से पहले एक मनुष्य के जीवन में अभिमान और घमंड आता है। और हम देखा कि जो सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों पर शासन करता है और शासकों के ऊपर भी शासन करता है। And next comes chapter 7. और उसके बाद हम आते हैं 7वें अध्याय में। We don't come to chapter 5 after chapter 4, because I have already told you that the book of Daniel is not in chronological order. और हम यहाँ चौथे अध्याय के बाद 5वें अध्याय में नहीं आए, क्योंकि दानियल की किताब जो लिखी गई है वो खंड के अनुसार, क्रम के अनुसार नहीं लिखी हुई है। Here in the chapter 7 we find 4 beasts. और यहाँ चौथे अध्याय में हम 4 प्रकार के पशु को देखते हैं। And the same 4 beasts belonging to the same, talking about the same kingdoms, what we found in chapter 2 of Daniel. और दानियल की किताब अध्याय 2 में जिन राज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हीं राज्यों के बारे में यहाँ पर भी इन पशुओं के द्वारा वर्णन किया गया है। So I have kept on the screen Daniel chapter 2 verses 31 to 45 and chapter 7 verses 1 to 8 and chapter 7 verses 15 to 28. They have the same thoughts but 2 different pictures. और जैसे दानियल की किताब 2 का 31 से 45, 7 अध्याय के 1 से 8 और 15 से 28 वचन तक हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यही विचार वहां भी लिखे हुए हैं। Let me repeat. In the chapter 2, we have seen at least 4 kingdoms. The first one is the kingdom of Babylon, representing head. It's made of gold. और जैसे कि अध्याय 2 में जो हमने मूर्ति को देखा था, उसकी जो महिमा लिखी हुई थी, उसके हम वर्णन में भी देखते हैं यहाँ पे कि उसका जो सिर है जो सोने का था वो शेर को दर्शाता है। In fact, God declared his plan and purpose of the whole creation well in advance. He declared what kind of kingdoms are going to come in future, how God is going to rule, how God is going to establish his kingdom. It was very beautifully portrayed in a picture. और परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में इन सारी राज्यों को बता दिया था चिन्ह के रूप में कि किस प्रकार अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर इस दुनिया में प्रकट होंगे। About the same kingdom of Babylon, chapter 7 verse 4, the first one was like a lion and had eagle wings. I watched till its wings were plucked off, and it was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. और जैसे कि दानियल 7 अध्याय उसके 4 में लिखा है, पहला जंतु सिंह के समान था
और उसके पंख उपकाप कैसे थे, मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए, और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पाँव के बल खड़ा किया गया, और उनको मनुष्यों का हृदय दिया गया। Lion is representing the kingdom of Babylon. और ये जो शेर है प्रियो, ये बेबीलोन के राज्य को दर्शा रहा है। And chapter 5, we find another beast, which is a bear. It talks about Medo-Persian kingdom, which ruled 539 BC to 331 BC. और पांचवें वचन में जो हम एक रीछ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात भालू के समान जीव के बारे में, ये जो है मीडो पर्शियंस राज्य को दर्शाता है, जो कि चांदी से बने हुए भाग के समान था उस मूर्ति के। और इसमें उसके ये जो समय काल है, ये 539 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व की घटना है। And then the third kingdom is the kingdom of Greece. Seventh chapter, verse 6, a beast by a leopard. Let me read it for you, verse 6. Then I looked, there was another like a leopard, which had on its back four wings of a bird. The beast also had four heads, and dominion was given to it. और इसके बाद जो तीसरा राज्य है वो यूनान का राज्य है प्रियो, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि उनका जो जांग था और जो पेट था वो एक तांबा का बना हुआ था। और ये जो है चीता को दर्शाता है। और यहाँ जो वचन दानियल 7 अध्याय 6 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पंख हैं, और उस जंतु के चार सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। And chapter 7, verse 7, we find a dreadful beast which was representing the legs made of iron in chapter 2, talking about the kingdom of Rome and revived Rome from 168 BC to second coming. और हम देखते हैं प्रियो, जो चौथा भाग है जिसमें हम एक भयानक एक डरावने जंतु के बारे में देखते हैं, वो जो है वो इस मूर्ति के पाँव को दर्शाता है, जो कि लोहे से बना था। और ये जो है रोम, और रोम की से जो उत्पन्न शासन है उसको दर्शाता है। और ये लगभग ये घटना 168 ईसा पूर्व से दूसरे आगमन तक होती रहेगी। And chapter 7, verse 8, we find Antichrist. And I considered the horns, and there was another horn, a little one, a little horn is represented by the Antichrist. और प्रियो, जो दानियल 7 अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से तीन उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल और बोलने वाला मुंह भी है। ये जो छोटा सींग है, यही मसीह विरोधी को दर्शाता है। And chapter 7, verse 13, I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days and was presented before him. और यहाँ 7 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। The Bible scholars, they refer the Son of Man is talking about the Lord Jesus Christ. और बाइबल के जो ज्ञाता हैं वो बताते हैं कि ये जो मनुष्य का संतान सा लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह है। And then we find in chapter 8 some more information relating to the same information. और हम यहाँ देखते हैं कि जो दानियल की किताब अध्याय 8 है, उसमें इन्हीं इन्हीं दर्शनों से संबंधित हम उसी जानकारी को अलग रूप में देखते हैं। Here we find a little more details. और यहाँ पे ज्यादा विशेष विस्तृत रूप से हम वर्णन को देखते हैं। Chapter 8, verse 3, behold, a ram which had two horns and was standing in front of the canal. And that means a ram representing Mede-Persian king Darius III. इट इज वर्स 3 अंकल। Yeah, actually, chapter 8, verses 1 to 4, and verse 20, we find the same reference. ओके। और अभी हमें देखते हैं 8 अध्याय उसके 3 वचन से, जो उन्होंने
Yeah, there was a ram, verse 3. There was a ram. That ram is representing Medo-Persian King Darius III. ओके। फिर मैंने आंखें उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है, और उसके दोनों सींग खड़े हैं, परंतु उसमें से एक अधिक बड़ा, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। ये जो मेढ़ा है, ये मध्य पर्शियन शासन को दिखाता है। And then verse 5, we find a male goat. A male goat was coming from the west over the surface of the entire earth without touching the ground. So that male goat representing Greek's emperor Alexander. We find the और same story, chapter 8, verses 5 to 8 and 21 and 22. हम 8वें अध्याय के 5वें वचन से 8वें वचन में और 21 और 22 वचन में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि वे चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने की योग्य सींग था। ये जो बकरा है, ये यूनान के शासक अलेक्जेंडर को दर्शाता है। And chapter 8, verse 9, out of one of them came a rather a small horn, which grew exceedingly great. और उसके बाद 9वें वचन में लिखा है कि इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। A small horn or a little horn was represented by Antiochus Epiphanes. He was the, this particular story happened during the silent period, a 400 period after Malachi, before John the Baptist. और ये जो छोटा सींग के बारे में लिखा हुआ, ये जो एंटीओकस इपीफेनस के बारे में बता रहा है, और ये वो घटना है जो कि गुप्त काल में, जो कि साइलेंट पीरियड में मलाकी के बाद जो 400 वर्ष तक के बीच में जो घटना हुई थी, उसके बीच की घटना है। We will study, when we study the silent period, 400 years, what happened, then we'll talk about this Antiochus Epiphanes. और जब हम इन 400 वर्ष के एक शांत समय के बारे में या गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, तब हम एंटियोकस एपिफेनस के बारे में जानेंगे। This little horn is also referred by the Antichrist, who is going to come, the ultimate Antichrist, during the revived Roman Empire. और ये जो छोटा सींग है, ये मसीह विरोधी को भी दर्शाता है, जो कि भविष्य में आने वाला है। और ये जो भविष्य में आने वाले जो रोम के जो शासक है आने वाले, उसके बारे में दिखाता है। So chapter 2 and chapter 7 and chapter 8 talks about the whole span of, the kingdoms spread over. और 2 अध्याय, 7 अध्याय और 8 जो अध्याय है, ये पूरे जो शासक और शासन जो अलग समय पर आएंगे, उन उसके बारे में ये बताता है। In the 9th chapter, Daniel talks about 70 weeks. There we find much more details about the future. और जो दानियल की किताब अध्याय 9 में वो 70 सप्ताह के बारे में बताता है, उसे हम अभी भविष्य में और देखेंगे। So I think chapter 5 we'll see in the next class. Whatever we have studied thus far, that we'll do. और आगे हम 5वें अध्याय के जो अध्ययन है वो आगे क्लास में करेंगे। Shall we close our eyes and look to the Lord in prayer? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में परमेश्वर की ओर निहारें।